हमारे वेदों ने हमें सिखाया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है, ये देश हमारी मां है, हम इसी की संतानें हैं। दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ? वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया, यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। You just heard the Prime Minister claiming that the Congress did what even the British couldn't do. Let's tell you what exactly are the lines removed by the Congress party. I will tell you the Sanskrit and the English translation as well. Bahubal Dharini Namami Tarinim, which means you are the embodiment of strength. Bahute Tumi Ma Shakti, you are the very life force that resides within the body. Tvam Hi Durga Dash Praharan Dharini, you are Durga, the one who wields 10 divine weapons. Kamla Kamla Dal Viharini, you are Lakshmi seated upon the lotus. Vani Vidya Daini Namami Tvam, you are Saraswati, the giver of knowledge. I bow to you. These are the words. And why were these references to Hindu goddesses censured? On the News Hour Fact Check, I bring to you 2 letters written by Jawaharlal Nehru, where he declared what Vande Mataram is really and why it wasn't suitable to be a national song. In a letter dated September 1, 1937, Nehru wrote, and I quote, "No one considers these words to have anything to do with a goddess. That interpretation is absurd, but the song is not suitable as a national anthem." Remember, Subhash Chandra Bose had strongly advocated for the full original version of Vande Mataram to be adopted as the national anthem. On the 20th of October 1937, Nehru also wrote to Bose claiming it will irritate Muslims. His exact words are, "Background of the song likely to irritate the Muslims. Difficulty of the language is not understood by most people. I don't understand it without the help of a dictionary. Present outcry against Vande Mataram is largely manufactured by communalists, but those who are communally inclined have been affected by it." Did he mean Jinnah? Well, you just saw the 2 letters Nehru, as Congress president, blanked out the mention of goddesses Durga, Lakshmi and Saraswati. So perhaps it's no surprise that his great-grandson Rahul Gandhi last year also vowed to fight against Shakti. Let's remind you. हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। Today, after Prime Minister Modi accused the Congress of sowing seeds of division, Congress President Mallikarjun Kharge lashed out at the RSS and BJP, saying that they never sang Vande Mataram, while the Congress takes pride in singing it. Meanwhile, Congress and their alliance partners were unsparing. While some declared the Muslims will never worship their nation as a mother, others said singing Vande Mataram was an imposition and against their religion. Sample this.
लेकिन आप जब कोर्ट ने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है तो आप कंपलसरी क्यों करना चाहते हैं? और हमें उससे कोई एतराज नहीं है, बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़िए उसको, लेकिन हमारी आप धर्म के अंदर इंटरफेयर मत कीजिए। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। वंदे मातरम हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो, जनगण मन हो, इसमें किसे इस इख्तिलाफ किसे है, विवाद कहाँ है, एतराज किसे है? हाँ, किसी को मजबूर न किया जाए, यही पार्लियामेंट में मैंने कहा था। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं से इन मामलों में डिक्टेशन नहीं आना चाहिए। राष्ट्रगीत का चुनावी अभियान न बना दे उसको, क्योंकि भाजपा को राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो या इस तरह से जो भी प्रतीक चिन्ह है उनको चुनावी कैंपेन में बदल देने की महारत हासिल है। राष्ट्रगीत पूरे देश के मर्म से जुड़ी हुई चीज है। While Nehru censured references to Hindu goddesses in Vande Mataram, the Congress till date sacrifices the Astha of Hindus at the portal of appeasement. Let's remind you, after Shastra Puja of the Rafale planes, Kharge said there is no need for such tamasha. Congress called the Pran Pratishtha of Ram Mandir a BJP RSS event. Our military operations, Operation Sindoor and Operation Mahadev, were dismissed as names for religious benefit. When Chandrayaan 3 touched down at Shiv Shakti Point, Congress said this ridiculous habit now has reached the moon. When the Sengol was placed in the parliament, the Congress said symbolic gestures will not win hearts. Is the Congress, in the name of secularism, still sowing the seeds of division? And ladies and gentlemen, that brings me to the Motorola legitimate question on the News Hour tonight. Vande Mataram snipped for vote bank by the Congress? That's the question that we ask you tonight. The debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. And joining me on the debate tonight in our studios, Dr. Sudhanshu Trivedi, National Spokesperson and Member of Parliament of the BJP. Also joining me is Dr. Anand Ranganathan, author, scientist, political commentator. Ratan Sharda ji, author, joins the debate tonight from Mumbai. Asif Sohail, political analyst. Faraz Kidwai, National Spokesperson of the Samajwadi Party in our studios. Dr. Jain Jigyasu, National Spokesperson of the RJD, also joining us on the show tonight. But my first question goes to Tehseen Poonawala, supporter of the Congress Party. And Tehseen Poonawala, I want to ask you tonight, is it a Freudian slip that on the day we commemorate 150 years of Vande Mataram, Congress President Mallikarjun Kharge writes a letter where he says the BJP RSS have never sung Vande Mataram, and then says instead they continue to sing Namaste Sada Vatsale. उसके बाद का शब्द जानते हैं क्या था? मातृभूमि. Yeah. कहा नहीं? They don't sing that particular, the national song. They Yeah, didn't even... but Namaste Sada Vatsale Matrabhumi is the full you know, phrase. Even Matrabhumi was edited. Freudian slip, number one. No. Number two, Vande Mataram has seen removal of stanzas that praised Lord Lakshmi, Saraswati, as well as Durga, by the Congress Party, and Nehru said Musalman naraz ho jayenge. Vote bank politics is your DNA from 1937 till today? Actually, no, 1905 in the Swadeshi movement, Congress started actually first... Appeasement. Had first sung it. Whether we sang half a stanza, we sang the first 2 stanzas, or we sang the full song. भाजपा आरएसएस, भाजपा तो तभी जन्म ही नहीं हुआ था, इन्होंने तो कुछ नहीं किया. तभी तो यूज्ड टू सिंग हेल द क्वीन, लॉन्ग लिव द क्वीन, लॉन्ग लिव द क्वीन. ये तो उनका वही था जिन्होंने गांधी जी को धोखा दिया. ना कोट गांधी जी के their hands, हाँ, that time king was there, then queen came, correct. Hail the king, you're right.
जिन्होंने गांधी जी को धोखा दिया था, आई कोट गांधी जी, दैट द आरएसएस हैंड्स आर स्टीप्ड इन ब्लड, दोज हु बैकस्टैब गांधी जी इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, वो हमें पेट्रियोटिज्म सिखाएंगे। 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में वंदे मातरम को माना गया था। हम 2025 में 1937 को दिखाते माना गया था। 1950 में जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वंदे मातरम को देश का राष्ट्रगीत बनाया गया था। इन्होंने तो राष्ट्र ध्वज नहीं उड़ाया, इन्होंने तो कोई चीज को अपनाया नहीं, इन्होंने भारत के संविधान को इंपोर्टेड कहा। इन्होंने कहा कि मेरा तिरंगा अशुभ है, वो तिरंगा जो हमारे खून में लहरा था। मेरे दादा को गोली लगी थी जब वो गांधी जी के साथ थे, जब कस्तूरबा की हत्या होती। हम लोग वंदे मातरम के नारे लगाते, हमारे बाप दादाओं ने देश के लिए आजादी दी। ये लोग क्या कर रहे थे? आरएसएस वाले, आरएसएस वाले सिर्फ आरएसएस की अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। बलिदान तो हमने दिया है, हमारे परिवारों ने दिया है, हमारे परिजनों ने। महात्मा गांधी सपोर्टेड द राष्ट्रगीत वंदे मातरम। डिड यू ऑनर इट? आप हमेशा इनसे सवाल पूछते हैं, जीते जी। चले तो मैं जो तहसीन ने बोला उसमें से 3 पैराग्राफ ट्रंकेट कर दूं, बट मैं कांग्रेसी नहीं हूं। सब झूठ बोल दिया है, सारा झूठ बोल दिया। आज भी आरएसएस नहीं गाती है। आर यू फैक्ट चेकिंग हिम, आनंद रंगनाथन? टोटल फैक्ट चेकिंग। शुरू करूं या पहले? Yes, please. सुधांशु जी को मैं श्री अरविंदो ने वंदे मातरम से कविता वो निकाली थी, पत्रिका। वो कौन थे? कांग्रेस के गरम दल के नेता थे 1996 से पहले। यू नो व्हेन द फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वाज सung इन 1896 इन कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, हु वाज द चेयरपर्सन एट द टाइम? कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? रहमतुल्लाह अहमद सयानी। किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे यही तो मैं कह रहा हूं, द प्रॉब्लम स्टार्टेड विद द अपीसमेंट। चाचा जी आए। देन यू नो इवन मोहम्मद अली जौहर, the so-called great person which your allies revered, he was subsequently become the Muslim League president, and then he became Congress president. In 1923 he opposed, he walked out of the stage, still it was sung with full length. But in 1937 what happened? When Nehru has started succumbing to the जिन्ना's wishes, then started। और आप लोग बहुत कहते हैं कि साहब आंदोलन नहीं हुआ, आरएसएस ने नहीं किया। आरएसएस कब बॉर्न हुआ? 1925, ठीक। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1931 से 1947 तक, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1942, एक आंदोलन बताइए जो कांग्रेस ने किया। चैलेंज, फिर पूरी चैलेंज आजादी कांग्रेस लड़ रही थी पूरे। आप तो जिन्ना के साथ सरकारें बना रहे थे, आप तो जिन्ना के साथ सरकारें बनाते मुस्लिम लीग के साथ। गांधी इरविन में कौन सा पैक्ट हुआ कि 17 साल तक कोई आंदोलन नहीं हुआ? सिर्फ 42 में हुआ। तब जिस समय अगस्त 42 की सिचुएशन क्या थी? पर्ल हार्बर हो चुका था, और उस समय हिटलर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था, और सुभाष चंद्र बोस जी की फौजें यहां तक आ चुकी थी, और इवन 42 में यहां तक कहा गया कि साम्राज्यवादी शक्तियां भारत की पूर्वी सीमा तक आ गई हैं इसलिए। और अगर अंग्रेजों ने आपकी इच्छा के बगैर आपको वॉर में घोषित कर दिया था, तो व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड 1 सितंबर 1939, और याद आया अगस्त 1942 में। तो मैं पूछना चाहता हूं, पहले 6 साल में कांग्रेस ने कितने आंदोलन किए थे? सुनिए, अगर आप कह रहे हैं कि 1931 से पहले आरएसएस को करना चाहिए था, आरएसएस की कोई शाखा नहीं थी 1931 तक नागपुर के बाहर। चलो 1885 में कांग्रेस बनी, 1891 तक कौन से आंदोलन किए थे? बोलो मेरे भाई। सुधांशु जी अब आते हैं वंदे मातरम। सर मैं वंदे मातरम बोलूं, उसके बाद आप बोलिएगा। इसका जवाब। चलो आपकी सारी बात मान ली, कांग्रेस ने नहीं किया आंदोलन, कांग्रेस ने सिलेक्टिव आंदोलन किया। आपको किसने रोका आंदोलन करने से? आप तो सरकारें बना रहे थे जिन्ना के साथ, बंगाल हो, अनडिवाइडेड पंजाब हो, आप तो जाके कांग्रेस को निकालकर सरकारें बना रहे थे। दिक्कत वहां पर आती है सुधांशु जी, हमने किया कि हमने आधा किया, आपने तो जीरो किया सर। उसमें बहुत बार डिबेट हो चुकी। 1942 में फजलुल हक की पार्टी प्रजा कृषक पार्टी के साथ सरकार बनी थी, बाद में फजलुल हक ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो कांग्रेस का सदस्य रहा था जिन्ना। और 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में बाकायदा मुस्लिम लीग से पैक्ट किया कांग्रेस ने, और मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट। और दर्शकों से मैं बताना चाहता हूं, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट? इट वाज नॉट लाइक द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज टुडे। इन दैट केस ओनली द मुस्लिम विल बी द वोटर। उस एरिया में जो हिंदू होंगे वो वोट ही नहीं कर सकते थे, और उन सेपरेट इलेक्ट्रेट के तहत इलेक्शंस होते रहे। खैर वो छोड़िए, मैं वंदे मातरम पे बात करना चाहता हूं। वंदे मातरम भारत की उस सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक है। दैट इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अवर थॉट एंड कांग्रेस। कांग्रेस कंसीडर्ड इंडिया एज अ पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन, वी कंसीडर एज अ जियो कल्चरल नेशन। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है, हमारे लिए एक जीवंत राष्ट्र है।
और ये वेदों के उस विचार से आता है जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, जहां कहा गया माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। और इसलिए जो हिस्से आपने हटाए, तुम दुर्गा दश प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, तुम वीणा विद्या दायिनी, कमलाम अमलाम सुतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे, इसमें आप कहते हैं कि ये धार्मिक नहीं, यही राष्ट्र का प्रतीक था। क्योंकि जब आप कहते हैं तुम दुर्गा दश प्रहर धारिणी, तो उस समय आपकी आस्था कहां से जुड़ती है? कलकत्ता की काली जी से जुड़ती है, तो कामाख्या की मां कामाख्या से जुड़ती है, त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ती है, मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ती है, कन्याकुमारी से जाके जुड़ती है, वैष्णो देवी से जुड़ती है, मां विंध्यवासिनी से जुड़ती है, पूरा देश एकाकार हो जाता है। और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जुड़ती है और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जाके जुड़ती है। दैट्स हाउ द कंट्री कम्स एज ए लिविंग रिवर्बरेटिंग कॉन्शियसनेस विच द कांग्रेस हैज ट्राइड टू कट। Uniting the nation. 1 minute. Tehseen Poonawalla, uniting the nation. Uniting the nation was what this song, national song was doing. But you, please, 1 minute, Tehseen Poonawalla, you will stop heckling. You will have to stop heckling. I just want to ask, and I want to read out one part of Jawaharlal Nehru's statement in that letter. And he said, the background of Vande Mataram likely to irritate some communities. So did this appeasement start then and continue till date, where Jubilee Hills sees AIM and Revanth Reddy coming together, because Revanth Reddy says Congress is equal to Muslims, Muslims is equal to Congress? Anand Ranganathan? Thank you. First of all, good evening. It's an amazing panel. It's a privilege to be on this panel, starting with Sudhanshu ji, Tehseen and all the luminaries out here. But, you know, I had drawn out 6 points, Navika, because it's a very reasoned debate and I was sure we are going to get chance to say whatever we want to say. But I have kept the point number 6 as I had kept. I want to say that first up because you know, as a common man, I want our voice that I am privileged to represent to reach the Prime Minister. Even if it doesn't, I am confident through my dear friend and inspiration, Dr. Saab, it might reach. You see, let's state the facts out here. I have admiration towards Narendra Modi, but as well as anger. Let me explain. On this issue, I have admiration because he has, you know, basically condensed what a billion of us feel as to what was happening, what Congress did, the mutilation of one of the greatest songs ever written by man. He has condensed it, he has expressed it, and he has also said कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने कर दिया. But that is admiration. Thank you for mentioning that. But anger, as with all the things that he always does, conceptualizes, condenses, he doesn't act on it. He's got 11 years to change that. What is the point of rousing people, making them angry that yes, this injustice was done, when you have the power to remove that injustice, and Prime Minister, you don't do it? Why are you just saying that the song was mutilated, those 2 paragraphs, immortal paragraphs were removed? You had the chance in the last 11 years to reinstall those paragraphs. You've done nothing. That's point number 1. Point number 2, and I've said this. Before you go to the point number 2, let me tell you, when the Prime Minister commenced the celebrations today, the entire verse and chapter of the song was sung. Not the mutilated version, but the entire version. Programs of RSS and our related organization, entire Vande Mataram is sung. Will it be officially inducted into the Vande Mataram? Will it become the official song of the country? We did have. I did not have it. I did not. So the question is, will that become the official national song, Dr. Saab? National song is already, national anthem is already there. National song. Vande Mataram. Will it become with the reinstalled paragraphs? We are doing on its own, and definitely a time will come. जब इस समय सुनिए ना सर, हो गया नहीं. आप एक बताइए, आनंद रंगरत्न, आपने इतना तो बोल दिया. देखिए, एडमिरेशन का एंगर. बात सुनिए. जब हम और आप पढ़ते थे तब आप इतना बोल सकते थे टीवी पे. मैं टीवी पे Let people decide and a time will come. ये पूरा का पूरा ऑफिशियली भी आएगा और वो समय ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही आने वाला. चलिए. फराज किदवाई, I want to ask. अरे 5 पॉइंट्स और थे मेरे. नहीं, 5 पॉइंट्स तक तो सवेरा हो जाएगा. But Faraz Kidwai, my question to you is,
There are people who think that Vande Mataram has something to do with religion. It is the national song. It was the war cry. The British Raj banned this song. And I'm asking you, is it right in this generation to begin to resort to a truncated version or opposing the singing of the national song only because it upsets a certain vote bank? Appeasement politics के लिए अबू आजमी नहीं गाएंगे और आपके बर्क साहब वो तो उठकर चले जाते थे पार्लियामेंट से जब वंदे मातरम बजता था, जब खत्म होता था कोई सेशन उसके एंड में जब वंदे मातरम बजता था. आई वांट टू आस्क यू व्हाई. Navika ji, you gave reference of Pandit Jawaharlal Nehru, then you came to Barq Sahab and then Abu Asim Azmi Sahab. But very cleverly you skipped Mahatma Gandhi. What he said? Mahatma Gandhi has said, and I will quote you a book, पेज नंबर मेरे पास नहीं है. महात्मा गांधी said, सम्मान और प्रेरणा का स्रोत. गांधी जी ने कहा था कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला गीत है. वे इस देश की आत्मा की आवाज है कहते थे. लेकिन गांधी जी मानते थे कि इस गीत के कुछ हिस्से, विशेषकर मां की आराधना वाला भाग, कुछ लोगों को धार्मिक रूप से असहज कर सकता है. तो गांधी जी का तृणल 1937 कांग्रेस अधिवेशन में ये उन्होंने बोला था कि हमारे लिए वंदे मातरम से बढ़कर कोई गीत नहीं है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि किसी को इससे ठेस ना पहुंचे. सो इफ नेहरू वाज रॉन्ग, देन गांधी वाज आल्सो रॉन्ग. पॉइंट नंबर 2. Sir, 2 minutes. Point number 2. What was happened on 25th of December 1924 when a bhajan was sung in presence of BJP leaders in Patna, Raghupati Raghav, Raja Ram, Patit Pavan Sitaram, that bhajan was stopped by Bharatiya Janata Party leaders. Why? Why it was stopped? It is not a hypocrisy. I will ask. Please respond. क्या हुआ? कब की बात कर रहे हैं? 25 दिसंबर 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी. वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये स्टॉप करवाया. आप गूगल करिए, आप प्लीज गूगल करिए. रघुपति राघव, राजा राम, पति होता ना तो कॉपीराइट एक्ट या प्लेगरिज्म लग जाता. Why you have stopped that bhajan? I am simply asking because it was very close to Gandhi ji and you hate Gandhi ji. And you hate Gandhi ji? नहीं. It was भारतीय जनता पार्टी लीडर अन्नू मलिक का है वो भजन. अन्नू मलिक ने किया है. प्लेजराइज्ड है, वो कॉपीड है. It's been mutilated. लक्ष्मणाचार्य जी ने जो लिखा है उसको चेंज करके ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कर दिया. गांधी जी ने किया है. This means गांधी जी को आप चेंज कर देंगे. गांधी जी है. सीन कर देगा. गांधी जी ने गाते रहेंगे. वैसे तो This is the problem. They hate Gandhi. They hate Gandhi. Will you redraft रामचरितमानस? Will you redraft रामचरितमानस? हम बुलाते रहे. What are you talking? What are you talking? One at a time. मतलब Sudhanshu ji, please respond. Actually, the reason was because Gandhiji has changed it. With due respect to Gandhiji, I would like to say, if it had been today, Copyright Act or plagiarism का उन पे issue. He has added, not changed it. Not added. He has added. He has added just. अब हमने time नहीं दिया sir. Let him. The original song was Raghupati Raghav Raja Ram Sundar Megha Shaligram Sundar Megha Sundar Vigrah Megha Shyam. और चंदन तुलसी शालिग्राम. Means you are accepting that it has been stopped in Patna? You are accepting? अगर कोई चीज रॉन्ग होगी तो बिल्कुल. And the reason this means Gandhi ji was wrong. This means Gandhi ji was wrong. डॉक्टर अंबेडकर सुनिए, डॉक्टर अंबेडकर ने बीबीसी के अपने इंटरव्यू में गांधी जी के बारे में क्या कहा है? मुझसे ज्यादा बोल रहा हूं. औकात हो तो बोलिएगा. औकात हो तो बोलिएगा. डॉक्टर अंबेडकर की आवाज है. डॉक्टर अंबेडकर has written several things in the annihilation of caste. चलिए annihilation of caste पढ़ो. बताओ annihilation of caste. annihilation of caste पूरी पढ़ी है मैंने. क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? और सुनिए, I have read bunch of thoughts also. अब भाग गए. अरे सुनिए क्या तरीका है भाई. अब अपने टर्न पे बोलिए. पहले मैं बात बताना चाहता हूं. सुनिए. Why I have said that the Gandhiji has committed a mistake? Definitely he is a human. He can do a mistake. 1906, after the Bengal division by Curzon, Hindu-Muslim jointly sung the entire Vande Mataram. किसी मुस्लिम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. When you start succumbing to the wishes of hardliners, that happens. Then after 10 years, 1916, Lucknow, their separate electorate. Then Jinnah said,
मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए आपने सब मूवीज में देखा होगा वो हमेशा मिस्टर गांधी बोलता था, कभी महात्मा गांधी नहीं बोला। देन यू सकम, देन इन 1937 आपने कहा ना कुछ लोग असहज हो जाएंगे। मैंने क्यों कहा गलत? असहज होने से रोका 37 में, तो क्या हुआ? वो असहज नहीं हुए, 47 में तोड़ के रख दिया, काट के रख दिया। ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैसेकर हुआ, 1 लाख 10 लाख लोग मारे गए। दुनिया की बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इन 6 मंथ, 1.5 से 2.25 करोड़ लोग बेघरबार होके हो गए। अगर कोई चीज गलती हुई है तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, और अगर सही बात है, गलती और सही की बात है, तो ये बताइए, ये राहुल गांधी आज बोलते हैं कि कास्ट सेंसस कराएंगे, और कास्ट सेंसस रोकी तो नेहरू जी ने थी, तो कहिए कि वो राहुल गांधी ने Who has given affidavit against in the Supreme Court? अरे मैं पूछ रहा हूं ना, नेहरू स्टॉप, सुनिए, गांधी ने कहा जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। सुनो 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी ने द लॉन्गेस्ट स्पीच ऑफ हिज कैरियर इन विच ही हैड सेड दैट द कास्ट। अब बता दो मेरे भाई। अच्छा चलिए दूसरी बात, और 2014 जब सोनिया गांधी जी के उसमें थी मनमोहन सिंह सरकार में, जरा 2 ओबीसी मिनिस्टर्स के नाम बताइए, द लास्ट कैबिनेट ऑफ मनमोहन सिंह। बोलिए, अब हो गया, अब बोलिए। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सोनिया गांधी ने बोलो। At present, as per Ministry of Social Justice and Empowerment, Faraz bhai, you raised the question about Patna and Raghupati Raghav Rajaram. He answered that question. Now he has raised the question. Please answer. महात्मा गांधी ने बिरला मंदिर में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गवा दिया। औकात हो कोई तो मस्जिद में गवा के दिखा दे। एक सेकंड जोशी जी, रघुपति राघव राजाराम गवा के दिखा दे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये बुलवा के हो गया। एक मिनट जोशी जी प्लीज, एक मिनट जोशी जी नहीं, जैसे महात्मा गांधी ने चेंज किया था लक्ष्मणाचार्य का, मैंने जोशी जी कह दिया, तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए ना? नहीं ओसामा जी आप कहिए, जो ओसामा जी कहना आपको कहिए। अरे यू आर मोस्ट वेलकम। जोशी जी सुन लीजिए, ओसामा जी आप बोलिए ओसामा। हाँ मुझे ओसामा कह दीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन। आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग। और वैसे ओसामा को साथ लेके 2005 में लालू यादव, नो प्रॉब्लम। देखिए मैं वंदे मातरम पे आना चाहता हूँ। हाँ देखिए, I have no objection to the fact that Muslims don't want to sing it. मेरा objection क्या है इस पूरे हिस्से से? It is not an insult to Muslims. It is an insult to Hindus. You see, I have always been of this opinion. Somebody who doesn't love this country, no amount of force can make him love that country. Are you saying Muslims? And so, now, one second. And somebody who loves this country, you don't need any force to make that person love that country. Do not force anyone to sing it, but why deny the inalienable right of Hindus to understand what Vande Mataram is? Why truncate the most sacrosanct thing for Hindus? What is Vande Mataram? It is an umbilical cord that connects what we are, who we are to this country, and it is symbolism. And talking of symbolism, let me expose the hypocrisy. Padma Bhushan Wahidullah Khan साहब, उन्होंने क्या कहा है कि मादरे वतन यूज कर सकते हैं, इस्लाम में सिंबलिज्म है। और अगर आप इस्लाम की बात करते हैं कि इस्लाम आपको नहीं कहता कि किसी और को पूजे, इस्लाम तो बहुत चीजें ऐसी कहता है जो आप नहीं करते। इस्लाम कहता है कि काफिरों को मारो, आप मारते हैं काफिरों को। इस्लाम कहता है झूठ है ये, इट इज अ लाई। डू नॉट टेक दिस मुसलमान एज फ्रेंड्स। कोर्ट आई विल एक्सपोज यू। कितना कोर्ट करूंगा? व्हाट आर यू टॉकिंग करूंगा? व्हाट आर यू टॉकिंग? प्लीज कोर्ट आई विल एक्सपोज यू। It is, you will give me 5 minutes. I want exactly. You are lying and you are misleading the country. You are misleading the country. You are creating a division between Hindus and Muslims. It is liar. 1 minute. No. I will not let him. I will not let him. If he has to prove his point, he will quote. But Asif Sohail, I want to ask you, is there a problem in singing the national song? Is there a problem with Vande Mataram? हाँ, thank you. आज तो आप गए. The Quran mentions, wherever you find a kafir, into bracket Hindus, wherever you find a kafir, you kill them. Who is ये एजेंट है. Yeah, they are agents. You are creating rumors. You are creating rumors. No, you are creating rumors. What are you talking? कुरान अच्छे लोग तो समझ नहीं पाए, समझेंगे। जिसकी किताब दिग्विजय सिंह रिलीज करते हैं वो बीजेपी का एजेंट है। दिग्विजय
senior leader of the BJP. Tehseen Poonawalla, he should be ashamed. एक मिनट, इन्होंने कहा बीजेपी का एजेंडा। आजकल जाकिर नायक कहाँ है? अरे आप बताइए बीजेपी के, तो आप जब बताएंगे कि मैं बताऊंगा? आई डोंट नो वेयर इज ही, व्हाट आर यू टॉकिंग? भोले मत बनिए, जानते हैं क्या भोले ना बनिए? होंगे कहीं, होंगे ना कहीं? होम मिनिस्ट्री इज विद यू सर, होम मिनिस्ट्री इज विद यू सर, इंटेलिजेंस इज विद यू। सुन लीजिए, सुनिए, मलेशिया के लंकावी में है। कौन क्या मलेशिया के लंकावी में? आवर कप ऑफ टी, इट इज योर कप ऑफ टी, व्हाट आर यू टॉकिंग? या मसीहा किसने कहा और प्रतिबंध किसने लगाया? किसके डर से? मोदी की सरकार से। और कहां पे लंकावी? ये राहुल गांधी लंकावी का है। अच्छा अभी सुनिए, आरोप नहीं लगा रहे हैं। There are panelists, no, 1 minute, there are panelists outside the Navika, 5 seconds. No, 1 minute. Navika, 5 seconds because he challenged me. तो मेरे को कोट करना है वर्बटिम। अब आप इंटरप्ट मत करिएगा, कोट कर रहा हूं वर्बटिम, ठीक है? अब आप सुनिए। Those who disbelieve in our verses, we will drive them into a fire. 456. Do not take disbelievers as friends unless they convert, and kill them if they refuse. 489. Do not forget that disbelievers are allies of... Which para? बोलो 489, 929 में ट्रांसलेट कर देंगे। मैं कुछ भी व्हाट्सएप पैदा कर दूंगा। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। मैं I will take the Quran and I will expose you. It is, मैं पूरी 100% authority से कर रहा हूं। It is not against you are 489 and I'm sorry, this is 489 कोट करिए। One minute, gentlemen. आपके ऊपर I want to play out what women in Mumbai are saying. Women in Mumbai, what are they saying? 1 minute, please listen to them. कुछ मुस्लिम नेता जो हैं वो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बोलना तो चाहिए। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो यही तो सब सिखाते हैं यार स्कूल में। और जो लोग ऐसी राजनीति करते हैं कि नहीं गाना चाहिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? हाँ, नहीं, गलत है वो जो लोग बोल रहे हैं। यानी अगर हम हमारी मातृभूमि का अगर गुणगान कर रहे हैं, उसके लिए अपना जो अटूट प्रेम है अगर वो बता रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात। गलत है वो जो बोल रहे हैं वो लोग। तो आप ये भी कोशिश करते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो भी ये गाएं स्कूलों में? हाँ, जरूर। अच्छा कर रहे हैं। गाना चाहिए, गाना चाहिए। तो ये हमारे देश को लेकर के हमारा जो प्यार है उसको बताता है, तो ये गाना सही है ना आपके? हाँ, गाना। लेकिन जो इस पे राजनीति करते हैं, बोलते हैं नहीं गाना चाहिए, इसका विरोध करते हैं, उनको कुछ कहना चाहिए? नहीं, गाना गलत कर रहे हैं, गाना चाहिए। मुस्लिमों का जो अपने आप को हितैषी बताते हैं वो तो कहते हैं कि इसका विरोध होना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। ऐसा कैसा नहीं गाना चाहिए? जब वंदे मातरम है तो गाना ही चाहिए। कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं। Asif Sohail, Muslim women have no problem in singing Vande Mataram. Why is it being made an issue of religion? It's the national song. What's the problem? नाविका जी, मेरा जवाब दूंगा मुझे विदाउट इंटरप्शन। अगर आप डिबेट अगर आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नहीं तो 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। ठीक है, देखिए नाविका जी, मुल्क से मोहब्बत दिल से होती है, हुक्म से नहीं होती है। वंदे मातरम कहना अगर देशभक्ति है तो मैं बिल्कुल वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। देखिए, हम फखर से बोलेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, क्यों? तो हमें भारत के ऊपर फखर है, हमें हमारे नेशनल सॉन्ग पे फखर है। कोई हमें अगर फोर्स कर बोलेगा वंदे मातरम, क्यों आप स्कूलों के अंदर फोर्स करा रहे हैं? क्यों बच्चों के बीच में आप जो सो एक डिफरेंशिएट कराने की कोशिश कर रहे हैं? आपको पढ़ना है तो पढ़िए ना, हम रोक रहे नहीं ना मैडम। देखिए, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते, हमारे ईमान को बेचकर से जो हमारे ईमान को बेचने की हम कोशिश नहीं करेंगे। हम बराबर जो सो सारे जहां से अच्छा ही बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। और ये देखिए, आज तेलंगाना के अंदर भी जो तो जी भाजपा के स्टेट में चल समझ में आता है, यहां पर भी सर्कुलर दिया गया है पढ़ने के लिए। ये तो गलत बात है मैडम। यहां पे एक तरफ बोलते हैं कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। देखिए मैडम, ये दुनिया शुरू होने से पहले मुसलमान थे, आगे भी रहेंगे, सुबह क़यामत तक मुसलमान रहेंगे। हम है तो हिंदुस्तान है, हम है तो कांग्रेस है, हमसे कांग्रेस से हम नहीं है। और हमें फोर्स मत करिए। मैं बोल रहा हूं मैं आपको, हमें वंदे मातरम बोलने के लिए फोर्स नहीं करिए मैडम। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी इजाजत दीजिए, आर्टिकल 25 में, सुप्रीम कोर्ट में भी हमें इजाजत दीजिए। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए ना मैडम। क्यों आप जो बच्चों के दिलों में एक नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं?
आप अगर नेशनल एंथम को भी जो अगर कोई वो करना है तो हम बराबर पढ़ेंगे। आप स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, ऑफिस के अंदर आप क्यों जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सुधांशु जी? कोशिश कर रहे हैं लोगों के, ये बोलना चाहते जरूरत नहीं है ना मैडम इसकी। नहीं, I completely agree with him. I completely agree. If they don't want to sing it, let them not sing it, because Dr. Ambedkar had said this. The true allegiance of a Muslim rests not in the place where he belongs to, but to his faith. तो नहीं कहना चाहता। अब सुनिए, बात सुनिए, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ। ये डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम पॉलिटिक्स इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर का ये डॉक्टर अंबेडकर बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, पर ये महात्मा गांधी ने भी बहुत सारी चीजें लिखी। अब मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट, on the serious note, I would like to ask, when national anthem Jan Gan Man was not adopted till on the night of 14th and 15th August 1947, the Constituent Assembly of Independent India started with which song? With which song? The British song. Vande Mataram by Sucheta Kriplani. And subsequently Jan Gan Man was adopted. क्या साहब बात करते हैं? नहीं, चलिए मान लिया, कहते हैं साहब हम खुदा के अलावा किसी के आगे सजदा नहीं करेंगे, तो ये बादशाहों के आगे सजदा क्यों होता था? खुतबा में बोला जाता था सजदे में निगाह रहे, तमाम होश अखिरत पेश बादशाह रहे। और मैं कहता हूं दर्शकों से, अगर किसी को फिर भी ना हो तो जरा ये मुगले आजम मूवी देखना, जिसका जो सबसे फेमस गाना है ना, प्यार किया तो डरना क्या, उससे पहले एक एक करके जो सब आते हैं ना, महारानी जोधा, सलीम, उससे पर जब अकबर आता है एग्जैक्टली ये लाइन बोली जाती है, सजदे में निगाह रहे, तमाम होश अखिरत पेश बादशाह रहे। भाई साहब, बादशाह को सजदा करेंगे मगर कहेंगे कि मातृभूमि को सजदा नहीं करेंगे। और दूसरी बात इनको बताना चाहता हूं, मौलाना आजाद वो द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में सारे राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर्स का प्रोग्राम किया, फर्स्ट मीटिंग, उसमें वंदे मातरम नहीं, सरस्वती वंदना भी गाई गई। यही तो प्रॉब्लम है। 47 हमने वंदे मातरम और क्या, आप लोग को पॉलिटिक्स करना है, हम लोग वंदे मातरम को मानते हैं। आप मौलाना आजाद सही थे, मौलाना आजाद सही थे, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी, बोलो मौलाना आजाद सही थे, रेवंत रेड्डी, बोलो। सुधांशु जी, कांग्रेस ने वंदे मातरम को अडॉप्ट किया, कांग्रेस ने उसको गवाया, हमने तो उसको लाया, हमने उसको नेशनल असेंबली में उसको पास करवाया। नेशनल सॉन्ग क्या आप कर दीजिए पूरा। हाँ, फिर देखिए कोई मुसलमान नहीं गाता, कोई भारतीय नहीं गाता, आप नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं है? इनके पास पूरी बहुमत है। 1 minute, I will tell you why. बता रहा हूं क्यों नहीं हुआ। सुनिए, जब अडॉप्ट किया एक भी विपक्षी नेता ने विरोध नहीं किया, आज सब सर के बल खड़े हुए कि नहीं होने देंगे। यूनानिमस हुआ था, यूनानिमस हम तैयार हैं। आपके पास तो बहुमत है, 11 साल से बहुमत से नहीं हुआ था, सर्वसम्मति से हुआ था। इट वाज यूनानिमस, नॉट बाय द मेजॉरिटी। I want to 1 minute. I want to get in Mr. Ratan Sharda. Mr. Ratan Sharda, Nehru then said some part of this country will have a problem with the national song. Who was he referring to? And he said the people with a communal agenda will have a problem और उनकी बात में दम है. He said that then. Today Revanth Reddy says Congress is equal to Muslims, Muslims is equal to Congress. And what did Rahul Gandhi say 2 years ago? What did he say? He said हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम उस शक्ति के खिलाफ हैं। आप समझ रहे हैं ये वंदे मातरम से इतनी प्रॉब्लम क्यों थी और आज भी चल रही है कांग्रेस की? रतन शारदा जी। देखिए, पहले तो मैं निपटा दूं जरा, तहसील को हर बार आके झूठ बोलने का बड़ा शौक है, मुझे लगा था यहाँ बैठे कुछ लोग बोल देंगे। पूरी किताब है जिसके अंदर आरएसएस के लोग फांसी पे चढ़े गोलियों से पर 1942 में। मैं नाम लेने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इन्होंने का सजदा किया ब्रिटिश का, किसी ने आज तक एक प्रूफ दिया नहीं कि आरएसएस ने किसी सजदा किया। तीसरी बात है, 1942 की दुहाई देते हैं गांधी जी को, 1942 को डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपोज किया था। उसके अलावा 1900 पहली वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेजों का साथ गांधी जी ने दिया था। बोर वॉर के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया था। हर महान आदमी के जीवन के अंदर बदल आते हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं जो पसंद नहीं आती, लेकिन सिलेक्टिव नहीं हो सकते। यू एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज, यू कैन नॉट प्ले गेम्स विद दैट। एज फार एज आरएसएस इज कंसर्न, डॉक्टर हेगडे's फर्स्ट एक्सपल्शन एंड फर्स्ट प्रोसेस
protest against British was for Vande Mataram. He was rusticated from the school because he said, I will sing Vande Mataram. All across the school would have sung. Finally, he said, oh, the others should not suffer. I will take the rustication, and went to other national school after that. Now, coming to this issue, one is that why was Pakistan created? Was the first demand of the Muslims. We will not live by the Hindu rules. We want a separate nation because we don't want to sing Vande Mataram. So the people who didn't want Vande Mataram created Pakistan. Those who didn't want to sing Vande Mataram went to Pakistan. आज 75 साल बाद वही मुद्दा दोबारा उठ के क्यों आता है? अगर आपने इस देश को स्वीकार किया as it is, why are you putting conditions now? So that is my question, that why should you keep today? And when you talk of 1942, we always forget to show the role of Communist Party of India, who is close friend of Congress, who said, we will work for the British, we will rat on the Congress leaders, please allow us. First they opposed British, then they went with British. This Communist Party, which is hand in glove with Congress, which is what Rahul Gandhi is following all his time. So let us not try to twist history. Let us be true to the fact. Fact is that Muslims first demanded Pakistan on the base of not having their own way. As far as appeasement goes, appeasement started in 1920 when in Mopla genocide, when they killed thousands of Hindus. No Congress leader had the guts to speak against that. There were years of riots after that before a pact was made, and that continued. That is the reason that Jinnah left Congress, because he did not believe in Mollagiri and Maulvis. He wanted a modern Muslim to join the political mainstream, and he was not allowed, and all these Mullah Maulvis won the game till today. Politics in India is controlled by Mullah Maulvis, and all this talk about मैं करूंगा भक्ति, मैं नहीं बोलूंगा, ये कह रहे हैं लोगों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. भैया डिफरेंशिएट तो आप करते हो. जब स्कूल के अंदर सारे वंदे मातरम बोलते हो, आप बोलते हैं मेरा वाला नहीं बोलेगा. तो जब आप बोलते हैं मेरा वाला नहीं बोलेगा, तो आप ना डिफरेंशिएट कर दे ना अपने बच्चे को. तो ये जो आपका अप्रोच है डिविजन which is true. Why are we differentiating? Same thing, same argument on the uniform debate, same argument on the Vande Mataram debate, and let me get in. It's not written in the scripture. Totally. Sure. 1 minute. No, I'm not going back to the scriptures debate. I want to get in. I want to get in Jivesh Jigyasu Saab. And Jivesh Jigyasu Saab, Jayant Jigyasu Saab. My question to you is, Arif Mohammad Khan Saab, you would have heard about him. He's the governor of Bihar. What did he say in an article in 2006? He said that the objection to Vande Mataram is both unnecessary and irrelevant. He pointed out that the song was sung at Congress meetings even when prominent Muslim leaders like Maulana Abdul Kalam Azad served as Congress president. He also said, I have no doubt that opposition to Vande Mataram is not rooted in religion but in divisive politics that led to partition. And his version of the Urdu version of Vande Mataram ka Urdu tarjuma, he said, तस्लीमात माँ तस्लीमात तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से. इसमें क्या दिक्कत है? तस्लीमात माँ तस्लीमात. तेरी रातें रोशन चांद से, तेरी रौनक सब्जे फाम से, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है. तस्लीमात माँ तस्लीमात. क्या मुश्किल है इसमें? This is non-issue, and I don't think that we should discuss these kind of things and waste the time of our audience. Are you saying Vande Mataram? Are you saying Vande Mataram, the war cry that led to the independence, actually is something we should not waste time on? Let me finish it. The very background of this song, and from where it has been taken. Initially, he was a deputy collector in the British period, Bankim Chandra Chatterjee or Bankim Nath Chatterjee. And he felt agitated when it was made mandatory to sing God Save the Queen. And in the response of that, he composed the Antara and the first two verses in Sanskrit. And it was accepted by our freedom fighters as the national song. The rest part was composed in Bangla, and it takes 65 seconds. And the very aesthetic sense or the rhythm, everything is perfect. Now, my question is कि अगर हम इसको इस तरह से पोर्ट्रे करें, जो उपन्यास
पूरे ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, अकाल के पस मंजर में लिखा गया और उससे करोड़ों लोगों ने एक प्रेरणा ली। अब आप उसमें घसीट रहे हैं किनको? नेहरू को। अब नेहरू ने क्या कहा उसको आज की तारीख में आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए ना, खुद पढ़े भाई। नेहरू साहब खुद पढ़े थे। He wrote what he wrote. I didn't write those letters. Dr. Sudhanshu Trivedi didn't write those letters. मुझे मैंने आपको 49 मिनट नहीं 54 मिनट तक सबको सुना। आपको 1 मिनट में आप डिस्टर्ब हो गए। मैं तो खुद अब से कह रहा हूं कि मेरे अरब को आती ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन। तो इस देश और इस वतन से, मादरे वतन से किसको मोहब्बत नहीं है? लेकिन इसको हर हमेशा ज़बां पर लाकर और उसको प्रचारित करने में हम यकीन नहीं रखते, हम तो उसको शिद्दत से महसूस करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि नेहरू ने क्या लिखा, सेकुलरिज्म। We talk about secularist in India. It's perhaps not very easy even to find a good word in Hindi for secular. Some people think it means something. Yes, we have put all of that out. But he also said that this will not be acceptable to a section of the people, and that is where the problem You know began. which was the section of people? जिज्ञासु जी, पटना में एक प्रोग्राम हुआ था, चुनाव से पहले एक बड़ी रैली हुई थी, in which Mr. Tejasvi Yadav has gone. And the name of the rally was इमारते शरिया. And one of the organizers of इमारते शरिया said, हमारे लिए शरिया पहले है, संविधान बाद में है. And Tejasvi Yadav kept mum. Nobody said कि बाबा साहब के संविधान का अपमान हो गया, when it is openly said कि हमारे लिए शरिया पहले है, संविधान बाद में. And Congress party on Shabano case in 1985, when there was a conflict between Supreme Court and Sharia, they have trounced the judgment of Supreme Court to put Sharia over and above the Constitution. This never happened in any secular country. जैन जी, आप मेरी जिज्ञासा शांत कर दीजिएगा. Name a single secular country in the world in which Supreme कोर्ट इज लोअर एंड शरिया इज ऊपर. और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, जो लोग मुसलमानों की बात करते हैं, बराबर नंबर 10 पे बोलिए, क्यों बेकार में डिस्टर्ब कर रहे हैं. जो लोग मुसलमानों की बात करते हैं, द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री इज इंडोनेशिया. एंड इन द लास्ट यूएन सेशन जस्ट कंक्लूडेड इन सितंबर, एनीबडी कैन गो एंड चेक, when the prime minister president of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, concluded his speech in UN, what he said, Om Shanti Shanti Shanti. Then he said, Namo Buddhaya Salam. I challenge. कोई मुस्लिम नेता अगर ये बोल दे ओम शांति शांति शांति, फतवा जारी हो जाएगा. बट द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ओपनली सेज दैट ओम शांति शांति शांति, दैट इज ऑन द यूनाइटेड नेशंस. बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी, बट प्रॉब्लम ये है व्हेन यू गो फॉर शॉर्टकट फॉर वोट बैंक, go for the hardliner faction and try to get, जिसे कहते हैं wholesale dealer of the voters, and that creates. Navika ji, well, I'm completely out of time. Sudhanshu ji, I am a Muslim and a leader. Om Shanti Shanti. Say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Say. अरे क्यों भाई? अरे तो जबरदस्त. अरे जब मैं मुसलमानों को नहीं बोल सकते तो आप नहीं बोलेंगे. ओम शांति. अरे इसी का नाम नहीं है. ओम शांति. किसी का नाम नहीं है. सुनिए. अरे सुनिए. हसरत का सुनिए. सुनिए. दिल की सुनिए. बात को सुनिए. अरे प्लीज लेट मी कंप्लीट. लेट मी कंप्लीट. आगे पूरा बोलो. लेट मी कंप्लीट. बोलते इसका मतलब हुआ अल्लाह के अलावा कोई बात सुनो. मोहम्मद साहब के अलावा कोई रसूल नहीं है. बोलते हैं बहनों के मतलब जिनको song to bring in religion, to bring in your religion into a national song. That is what Vande Mataram has become 150 years later. Ladies and gentlemen, in 150 years, where have we traveled to? Where have we traveled to? 1 minute. We did a poll. In 150 years, your national pride, your national song wades into religious waters. Is that only because we have vote banks in mind? We asked this question to the people of India. Did Congress cut short Vande Mataram for vote bank politics? Yes, say 86%. No, say 11%. Can't say 3%. Janta hai, sab janti hai. 86% people know this is nothing but politics and vote bank politics. Well, you can't hide your spots, Faraz Kidwai. This is what is transparent. और आपके शेर के बिना तो मैं शो एंड नहीं करूंगी. सुधांशु त्रिवेदी.
पढ़ेंगे। वैसे तो साहब जो लोग वंदे मातरम पूरा नहीं बोल पा रहे थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने की बात करने लगे। खैर कोई बात नहीं। तो सच कैसे उभर के सामने आया कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, पर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। Well, on that note, thank you very much for joining me on the News Hour tonight. Good night, be safe, have a safe weekend. The News Hour at 9 will be right back after the break.